Hello, 8th standard. Let us start with, not let us start, actually we already started our geography lesson number 2, right? In that we finished the topic about land, right? Land के बारे में हम already पढ़ चुके हैं. So let us continue in this video with these 4 topics. First one is conservation of land resources. Then we will talk about soil. Okay. Now talking about conservation of land resources, it is on, if you have your textbook, please you all can open your textbook on page number 11. Okay. On page number 11 we have our last 4 lines related to conservation of land resources. Okay. Now conservation of land resources, growing population and their ever-growing demand has led to the large-scale destruction of forest cover and arable land. Arable land, that is agricultural land, okay, and has created a fear of losing this natural resource. See, बहुत प्रॉब्लम होती है अगर लैंड एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो जाए. Okay, it creates a lots of problem, right? How problem? See, and another thing is growing population. See, जितना ज़्यादा population grow हो रहा है, land का उतना ही use हो रहा है, and land का जितना ज़्यादा use होगा, land उतनी ही ज़्यादा या तो deforest होते जाएगी. That is, people obviously to satisfy their need, the people go on cutting trees and all. So deforestation होता जाएगा, and if people will go on setting up industries, so that land will become, that land will not be of use of related to agriculture also. Okay, agriculture के related भी वो land नहीं रह पाएगा. So मतलब बंजर हो जाएगा, और बंजर land तो फिर use में नहीं आ सकते, right? इसके लिए काफ़ी नेचुरल रिसोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा. Okay, therefore the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizer, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. Land को संभाल के रखना बहुत जरूरी है, और लैंड को संभाल के रखने के लिए another we can tell present rate of degradation of land must be checked. Okay, that is किस तरह से लैंड मूव हो रहा है या किस तरह से लैंड को हम संभाल के रख सकते हैं, that all we can take care of. Understood? That is, either we can go on growing more trees. See, ट्रीज ज़्यादा ग्रो करने से क्या होगा, मिट्टी मूव नहीं होगी, और जब मिट्टी सॉइल मूव नहीं होगी तो फर्टिलिटी नहीं जाएगी. दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन दीज टॉपिक्स. अंडरस्टूड? डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मिट्टी को भी संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, देन सी, ओवरग्रेजिंग ना हो. कहीं पर फॉरेस्टेड एरिया है तो वो फॉरेस्टेड एरिया में ज़्यादातर वी कैन टेल ग्रास और बुशेस एनिमल्स के द्वारा ज़्यादातर ना खाए जाएं, क्योंकि यू नो बुशेस एंड ऑल आर ऑल्सो समवेयर इट इज़ ऑल्सो हैबिटेट ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, राइट? इंसेक्ट्स और एनिमल्स के हैबिटेट है वो भी. ओके, सो दैट इज़ व्हाट, ग्रास और बुशेस भी ओवरग्रेज ना हो, दैट वन हैव टू सी, राइट? Now on your page number 12 we have one topic, that is landslides. Now if I am talking about landslides, this is case study which you can do it. You just go on reading and you have to see the situation. Okay, here if I talk about landslides, so talking about landslides, landslide क्या होता है, you can see here picture, like कई बार because of very heavy wind या because of due to heavy rain, due to very fast flow of water, उसकी वजह से जब माउंटेन का कुछ हिस्सा ऊपर से टूटकर नीचे गिरे, उस वक्त वही हिस्सा इफेक्ट नहीं होगा,
जहाँ जहाँ वो बिग रॉक लगेंगे वहाँ वहाँ पूरा ही धरती पूरी इफेक्ट होगी। अब माउंटेन में से अगर माउंटेन पे से अगर कुछ गिरेगा, नो वन कैन बी एबल टू स्टॉप दैट। तो जिसकी वजह से काफ़ी हाउसिंग, काफ़ी शॉप्स, काफ़ी एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया जो है वो सब डिफेक्ट होता जाएगा, वो सब नॉन यूजेबल रह जाएगा, ओके, बिना यूज के रह जाएगा। सो धरती को संभालने के लिए दैट इज लैंड रिसोर्स को हमें संभालना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? कंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन, सी अगर हम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की कंस्ट्रक्शंस करते हैं, इट इज़ नॉट दैट कि हम वो कंस्ट्रक्शंस हम एनीवेयर कर सकते हैं। You know, we have to take proper permission of government, then government give permission, government also see land, on which land you people are going to construct your factory or industry। क्योंकि फैक्ट्री और इंडस्ट्री आप एग्रीकल्चरल एरिया में नहीं कर सकते। क्यों? दैट इज एग्रीकल्चरल एरिया में अगर एक बार फैक्ट्री बन गई तो वहाँ पर दोबारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। और दूसरा, फैक्ट्री और इंडस्ट्री अगर आपको सेटअप करना ही है, it should be set up far away from city, because factory industry production process there will be so many pollutions existing from that industries and all, right? So काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखकर हमें हमारी लैंड को बचाना जरूरी है। Understood? Next one, talking about soil. Soil, that is our next topic of today's video. Soil की बात करें तो the thin layer of grainy substances covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. See, if you have your textbook, you can see this picture. ऊपर की ही जो लेयर है, धरती की ऊपर की जो लेयर है, वो लेयर में सॉइल अवेलेबल है और वो सॉइल हमें क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्पफुल है। ओके, अब ये सॉइल इट इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर आवर क्रॉप्स ग्रोइंग, इट इज़ इवन हेल्पफुल दैट इट गिव्स अस सो मेनी मिनरल्स एंड ऑल ऑल्सो। काफ़ी मिनरल्स भी पाए जाते हैं सॉइल में से। ओके, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। Soil is made up of organic matters, minerals and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of mineral and organic matter makes the soil fertile. See, अलग अलग एरिया वाइज सॉइल भी अलग अलग देखने को मिलेगी, राइट? इफ यू सी सॉइल अराउंड योर हाउस, I don't think you will see sandy soil over there. ओके, सैंडी मटेरियल लाइक बीचेस पर जो सॉइल है वो कम्प्लीटली अलग सॉइल है, आपके सराउंडिंग में जो सॉइल है वो कम्प्लीटली अलग है। फील्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली एलुवियल सॉइल होता है जिसमें फर्टिलिटी बहुत होती है, जिसमें क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सके, राइट? देन मूविंग ऑन, अगर माउंटेनियस एरिया की बात करें तो माउंटेनियस एरिया में भी कई अलग अलग कई अलग अलग तरह की हमें सॉइल देखने को मिलेगा। यस, सो बहुत सारी अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग सॉइल होती है। नाउ सॉइल बनती कैसे है? नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सी, सॉइल बनना इज नॉट इजी एंड फास्ट प्रोसेस। सॉइल बनना कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है, मैनी ईयर्स सॉइल बनने को लग जाते हैं। कैसे? यू नो, देयर इज पेरेंटल रॉक्स। पेरेंटल रॉक्स मतलब जब बड़े बड़े रॉक्स ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर या ड्यू टू वी कैन टेल ड्यू टू स्पीड ऑफ एयर, उसकी वजह से जब रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो इट लेफ्ट पार्टिकल्स बिहाइंड। वो जब वो मूव ऑन होते हैं तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं दैट मिक्स विद मिनरल्स। मिनरल्स क्या? सी, यू नो, इफ आई टॉक अबाउट ट्रीज एंड ऑल, अगर मैं ट्रीज की बात करूँ तो ट्रीज धरती पर ही होंगे, राइट? अब ट्रीज पे से जो लीव्स गिरेंगे तो वो जो लीव्स हैं या फिर उसकी स्टेम्स हैं या फिर क्या रूट्स हैं, ये ट्रीज अगर हम कट कर दें तो रूट्स तो वहीं रहती हैं, राइट? ये रूट्स, ये लीव्स, ये
राइट। और कई इंसेक्ट्स हैं, कई छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से मर जाते हैं, वो धरती पर एज इट इज़ रहते हैं। तो वो जब कन्वर्ट होते हैं मिट्टी में, when it get transformed it creates biotic and abiotic minerals। वो मिनरल्स जब पेरेंटल रॉक के साथ मिक्स होते हैं तब फाइनली सॉइल फॉर्म होता है। अंडरस्टूड? जहाँ पर ट्रीज, लीव्स, स्टेम्स वगैरह काफ़ी मिलेंगे, उस जगह पर आपको जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल मिलेगी। ओके, लाइक अगर बीचेस पर देखें तो बीचेस पे जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, क्योंकि बीचेस पर इतने ट्रीज नहीं है। अंडरस्टूड? सो सॉइल का फॉर्मेशन नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। Okay, the major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. Other factors are the topography, role of organic materials and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. See, organic materials, that is dead bodies of plants and animals, वो जब पेरेंटल रॉक्स के रिमेनिंग पार्टिकल्स के साथ मिक्स होता है तो सॉइल फॉर्मेशन होता है, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज। क्यों? क्योंकि हर एक डिफरेंट एरिया में डिफरेंट वेदर है। अंडरस्टूड? और जब वेदर डिफरेंट होता है तो ऑब्वियसली वहाँ का जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। आपने देखा होगा, और यू माइट हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस इन ज्योग्राफी टॉपिक स्पेशली, crops, different crops are grown in different areas. Understood? Like wheat and maize we cannot grow on sandy area. Sandy area में नहीं हो सकता, वो हो सकता है जहाँ पर रेनफॉल होता हो और जहाँ पर जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो। अंडरस्टूड? सो अलग अलग एरिया की मिट्टी जो है वो वेदर के ऊपर भी डिपेंड होता है उसका फॉर्मेशन। देन next one is degradation of soil and conservation measures. See, degradation of soil, that is soil का unfertile होना। एक तो fertile soil होती है जो काफ़ी काम लगता है, लेकिन जब soil एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तो उसकी fertility कम हो जाती है। That creates degradation. Understood? You might have heard word soil erosion. इरोजन मतलब क्या कि सॉइल जब एक जगह से लाइक सपोज एक सिंपल एग्जांपल दो, यू माइट हैव सीन फील्ड्स, आपने फील्ड्स देखे होंगे, लाइक दिस इज फील्ड, राइट? ओके, एंड दिस इज अनदर फील्ड। अब ये जो फील्ड है, यू माइट हैव सीन स्मॉल बॉर्डर्स ऑन फील्ड, आपको बॉर्डर्स दिखाई देंगी फील्ड पे, राइट? या तो उस बॉर्डर्स पर ग्रासेस होंगे, राइट? काफ़ी सारा ग्रास होगा उस बॉर्डर पर, या तो उस बॉर्डर पर ट्रीज ग्रो किए होंगे। यस और नो? ओके, व्हाई दिस हैपन्स? ये ट्रीज या ये ग्रास या फिर ये बॉर्डर बनाने की क्या ज़रूरत है? ऑब्वियसली ये फील्ड मेरा है, ये फील्ड उसका है, वो भी बॉर्डर से पता चलता है, लेकिन फील्ड के अंदर जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर वाटर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी होती है नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करने के लिए, राइट? अगर ये छोटी छोटी बॉर्डर्स ना बनाई जाए तो जब रेन होगी तो रेन के साथ साथ जब पानी ये फील्ड से बाहर बहेगा उस वक्त मिट्टी भी उसके साथ बाहर जा सकती है। यस, वेयरएज अगर ये बॉर्डर्स बनी हो तो जो मिट्टी है वो बाहर नहीं जा सकती। अंडरस्टूड? अगर ऊपर अपर लेयर, दैट इज अगर मिट्टी बाहर जाती है, मूव होती है, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पर बॉर्डर्स बन गए हैं, बॉर्डर्स में जो मिट्टी है वो सेफ है, क्योंकि मिट्टी अब मूव नहीं होगी, मिट्टी उसी फील्ड में रहेगी। दैट कम्स टू कंजर्वेशन मेजर्स, मिट्टी को कंजर्व करके रखना। अंडरस्टूड? लेट अस सी व्हाट इट इज रिटन। Sorry. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource.
As I talked about erosion, that is moving soil particle from one place to another. Okay, both human and natural factors can lead to soil erosion or degradation of soil. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse, and chemical fertilizers and pesticides, rain wash, landslides and floods. ये क्या है? That is जब सॉइल डिग्रेड कब होती है, सॉइल में जो कमी पाई जाती है वो कब पाई जाती है? या तो कोई लैंडस्लाइड हो या फील्ड्स में केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया हो, बिकॉज केमिकल इज वन टाइप ऑफ पॉइजन फॉर we use fertilizer to kill small insects so that insects should not get stick with our crops, क्योंकि अगर इंसेक्ट्स क्रॉप तक जाएंगे तो वो क्रॉप को धीरे धीरे खा जाएंगे, राइट? तो वो क्रॉप्स को ना कुछ हार्म पहुंचाए, तो वी यूज फर्टिलाइजर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक एंड केमिकल. Organic fertilizers are like either you can tell cow dung या vegetable peels and all, right? Which takes time to be converted into fertilizer. But अगर हम chemical fertilizer की बात करें तो it is available in market and it gives very fast result. Understood? Like अगर हम बात करें even doctors के differentiate करें, there is आयुर्वेदिक treatment काफ़ी time लेता है, right? रिकवर करने में, whereas with these private hospitals and all. Okay, उसी तरह से है जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो जल्दी रिएक्ट करता है, बट केमिकल फर्टिलाइजर से हमें जल्दी रिएक्शन मिलेगा, बट वो हमारी सॉइल को भी खराब करेगा, वो हमारी सॉइल को डिग्रेड करेगा. अंडरस्टूड? सो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सॉइल फिर क्रॉप ग्रो करने के लिए नहीं रहेगी. Understood? So that kind of chemical fertilizers and all. Pesticide is also insect killing only, that so that our crop should remain protected. Okay? Some method of soil conservation is listed below. Soil conserve करने के लिए कुछ methods हैं. Let us read those methods. First one, mulching. The bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. See, अगर एक ground है, if say like suppose we have one ground, say like suppose we have one ground, और अगर ये ground के सराउंडिंग में trees हैं, तो ये trees क्या हेल्प करेंगे? ग्राउंड की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो मूव नहीं होगी. क्यों मूव नहीं होगी? क्योंकि ये ट्रीज जो है वो सॉइल को अपनी रूट्स के साथ और अपने लीव्स के साथ रोकेंगे. अंडरस्टूड? सो वो जो ग्राउंड की मिट्टी है वो वहीं रहेगी. मतलब इन शॉर्ट वी कैन गो ऑन ग्रोइंग ट्रीज सो दैट आवर सॉइल शुड रिमेन प्रोटेक्टेड. दैट इज मल्चिंग. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, counter barriers. Stone, grass, soil are used to build barriers along counters. Trenches are made in front of barriers to collect water. See, what is counter barriers? That is, we can tell this only कि field में like यहाँ पर अगर हमारा एक field है, तो field में हमें कुछ ऐसा प्रोटेक्टेड कवर बनाना चाहिए जिससे हमारी सॉइल मूव ना हो. अंडरस्टूड? और ट्रेंचेस, वी कैन टेल फील्ड के साइड में अगर हम कुछ एक ऐसा कैनाल टाइप हो जिसमें पानी रह सके, क्योंकि वो पानी क्या करेगा? इट विल इंक्रीज अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर, के फील्ड को अंडरग्राउंड में भी पानी अवेलेबल होगा. अंडरस्टूड? उससे भी सॉइल काफ़ी फर्टाइल होगी. देन रॉक डैम. Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. So rock dam मतलब अगर हमें soil को रोकने के लिए
जहाँ पर बहुत सारे रॉक्स होंगे वहाँ पर भी सॉइल मूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रॉक्स ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट दिस, rocks also help to conserve soil. Understood? Next one is terrace farming. Now talking about terrace farming, so you can see terrace farming here in this picture 2.5, right? Terrace farming की अगर बात करें, broad flat steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. See, mountainous area में अगर हमें लगे कि there are many crops which are grown in mountainous areas also, right? On mountainous area, if we see that okay we have mountain like this, तो हम उस mountain पे अगर हम if we can make like this, okay, ये terrace farming होगी माउंटेन पे। इतनी जगह पर क्रॉप ग्रो होगी और यहाँ पे बॉर्डर बनाई जाएगी कि वहाँ से इरोजन होकर नीचे ना जाए। अंडरस्टूड? मोस्टली इफ आई टॉक अबाउट टी प्लांटेशन एंड कॉफीज एंड ऑल दीज कॉफीज एंड ट्री प्लांटेशंस आर ऑल्सो गोइंग ऑन इन माउंटेनियस एरिया। हमें पता है आसाम साइड पे टी प्लांटेशन बहुत है। क्यों? Maybe they might be doing with these terrace farming and slanting, क्योंकि वो जो क्रॉप है वहाँ पर पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। पानी अगर ऊपर से बहे तो उनकी रूट्स को पहुँचकर पानी आगे बढ़ना ही चाहिए। Understood? So that can come in terrace farming. Okay. Next one, intercropping. Different crops are grown in alternative rows and are sown in different times to protect the soil from rain wash. So intercropping, that is अगर हम crops को टर्न बाई टर्न चेंज करते रहेंगे तो उससे भी क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। अंडरस्टूड? दैट इज इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट वन, कॉन्टर प्लगिंग। You can see contour plugging picture also here, that is figure number 2.6. Plugging parallel to the contour on the hill slope to form a nature barrier for water to flow down the slopes. That is what see. एक तरह से नेचुरल बैरियर्स बनाए जाते हैं लाइक माउंटेनियस एरिया पर, लाइक इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद टेरेस फार्मिंग ओनली। Understood? Next one is shelter belts. What is shelter belts? You can see 2.7 figure. It gives us in the coastal and dry regions rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. So soil cover को protect करने के लिए यहाँ पर एक लाइन में in one row beaches are made. Understood? तो वो जो sorry trees are grown. So वो जो rows में trees grow की जाती हैं, that also help to stop movement of soil. Understood? This degradation of soil. And next is conservation measures. Okay. Next topic is water, but I'll stop here only. We will discuss about water in our next video. Just go through this much. I will upload pages also in this. Over here we have a diagram also of soil, which will give you easy idea formation of soil. Understood? So just go through these pages which I will upload on PDF with this video and do reading it properly. Okay everyone? Thank you.